شہر میں کل شب بارش کے باعث کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سرور نگر اور کودنڈا رام نگر کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سورارم تلگو تلی نگر میں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں اور عملے نے ان علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے اقدامات کیے۔ سری لنگم پلی میں 7.4 سینٹی میٹر، مہدی پٹنم میں 6.7، نامپلی میں 8، نارائن گوڑا میں 8.5، چار مینار میں 8.5، ایل بی نگر کے سنتوش نگر میں 7.7، سرور نگر میں 6.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چار مینار، بہادر پورہ، فلک نما، بارکس، چندرائن گٹا، سعید آباد، ملک پیٹ، نارائن گوڑا، حمایت نگر کے ساتھ ساتھ چمپا پیٹ، سنتوش نگر، چادر گھاٹ، دلسکھ نگر، کتا پیٹ، ایل بی نگر، ونستھلی پورم اور دیگر کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی مقامات پر موسلا دھار اور کئی مقامات پر اوسط بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث موسارام باغ پل پر پانی جمع ہو گیا، جس کے بعد اس برج سے گول ناکے کی طرف جانے والی ٹریفک روک دی گئی۔ ملک پیٹ ریلوے برج کے نیچے بھی بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے برج کے نیچے سے گزرنے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن ملکا راگھویندرا کو وزیر سرینیواس گوڑ نے تہنیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے علم میں لاتے ہوئے 10 لاکھ روپے نقد رقم اور مکان فراہم کرنے کی وہ مساعی کریں گے۔ یہ تہنیتی تقریب وزیر کے کیمپ آفس میں منعقد کی گئی۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے سامنے ایک شخص نے خودسوزی کی کوشش کی۔ اس کی شناخت سرینیواس کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قرض کی رقم پر سود کے نام پر اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر وہ یہ انتہائی اقدام کر رہا ہے۔ اس واقعے کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ یہ شخص پرجاوانی پروگرام میں شکایت کے لیے پہنچا تھا، تاہم چھٹی ہونے کی وجہ سے عہدیدار موجود نہیں تھے، جس پر اس نے کلکٹریٹ کے سامنے خودسوزی کی کوشش کی۔ اس نے 1 لاکھ روپے کی رقم قرض کے طور پر لی تھی، تاہم زائد سود وصول کیا گیا۔ اس کے باوجود ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی کلکٹر نے اس شخص سے بات چیت کی اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے پولیس کو ہدایت دی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ شعبہ عالمات کے زیر اہتمام عالمات و فارغات دینی مدارس کا ریاستی کنونشن جامع دارالہدیٰ وادی ہدا میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ علم دین کا حصول عظیم شرف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمات و فاضلات کا مقام عام مسلم خواتین سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ اگر وہ اصلاح معاشرہ اور اقامت دین کا کام انجام دیں گی تو دوہرے اجر کی مستحق ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جتنے احکام دیے گئے ہیں، سب کا خطاب مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقامت دین کی اجتماعی جدوجہد مطلوب ہے۔ اسلام کا مزاج اجتماعی ہے، لہٰذا اقامت دین کا کام مسلم خواتین کو بھی انجام دینا چاہیے۔ محترمہ ساجدہ ابواللیث فلاحی، معلمہ جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ و سیکریٹری شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند حلقہ اتر پردیش نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالمات و فارغات نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے ازالے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ عالمات پاکیزہ پرامن معاشرہ اور سماج کی تعمیر کا عہد کریں اور اسلامی اجتماعیت کا حصہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، ہمارا مقصد نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلم معاشرہ و سماج سے نامعقول رسم و رواج کی زنجیروں کو ختم کریں۔ دوسری طرف وطنی بہنوں میں دعوت دین کو پہنچانے کے لیے بھی اپنے وقت اور صلاحیت کا استعمال کریں۔ گورنمنٹ وپ ولکا سمن نے حضور آباد کے بی جے پی ایم ایل اے ایٹلا راجندر پر شدید نکتہ چینی کی۔ ایم ایل اے بالا راجو اور کے پی وویکانند کے ساتھ بلکا سمن نے ٹی آر ایس ایل پی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ایٹلا راجندر کی باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں حضور آباد میں ایٹلا راجندر کی شکست یقینی ہے۔ انہوں نے سابق وزیر پر گھمنڈی ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس گھمنڈ کے نتیجے میں ایٹلا راجندر آئندہ انتخابات میں گجویل اسمبلی حلقے سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے خلاف مقابلے کے خواہشمند ہیں۔
انہوں نے گورنر پر بھی تنقید کی اور ان کو مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ گورنر بی جے پی کا اسکارف پہن لیں اور سیاست پر بات کریں. جس طرح گورنر سیاست کر رہی ہیں میڈیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. కానీ తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే విధంగా అన్నం పెట్టినటువంటి చేతికి సున్నం పెట్టే విధంగా శత్రువులతో చేతులు కలిపి రహస్యంగా మంతనాలు చేసి నమ్మి చేరదీస్తే ప్రభుత్వాలు మంత్రిని చేస్తే ఆర్థిక మంత్రిగా ఆరోగ్య మంత్రిగా అవినీతి చేసి శత్రు పార్టీలతో చేతులు కలిపి వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి శిఖండి రాజకీయాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఈటెల రాజేందర్. మంత్రిని చేసి మంచి పని చేయాలంటే ఎస్సీల భూములు, బీసీల భూములు, దేవాలయ భూములు కబ్జాలు చేసి ఒక కబ్జా కోరుగా మిగిలిపోయినటువంటి చరిత్ర అయినది. అదేవిధంగా ఇతర పార్టీల నాయకులతో రహస్యంగా మంతనాలు చేస్తూ రాత్రిపూట తెల్లారిపూట సెక్యూరిటీ లేకుండా వాళ్ళ ఇళ్లలో పోయి మీటింగ్లు పెట్టుకుంటూ నమ్మిన పార్టీకి నమ్మిన సిద్ధాంతానికి నమ్మి అవకాశం ఇచ్చి అందరం ఎక్కించినటువంటి నాయకత్వానికి ద్రోహం చేసి వెన్నుపోటు చర్యపడ్డటువంటి వ్యక్తి ఈటెల రాజేందర్. అటువంటి ఈటెల రాజేందర్ ఆయన అసలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కానీ అదేవిధంగా కరీంనగర్ జిల్లా, నేను కూడా కరీంనగర్ జిల్లా బిడ్డనే, కరీంనగర్ జిల్లా రాజకీయాలు కానీ 2004 ముందు ఆయన అడ్రస్ లేదు. ఆయన బోడిలింగం, ఆయన ఏకలింగం. అటువంటి వ్యక్తిని పట్టుకొచ్చి ఎమ్మెల్యేని చేసి మంత్రిని చేసి ఈ స్థాయిలో అవకాశాలు ఇస్తే నమ్మిన పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచి శత్రువులతో చేతులు కలిపి ఇవాళ భారతదేశంలోనే ప్రజలను అరివేస పెడుతున్నటువంటి స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఎన్నడూ కూడా ఇంత దుర్మార్గపు పరిపాలన చేయనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీలో వచ్చి ఆనాడు కమ్యూనిస్టు అని చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ కమ్యూనిస్ట్ గా మారిపోయి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆ నాయకుల వద్ద ఊడిగం చేస్తూ బానిస బతుకుతూ ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా ఊగుతున్నాడు తెలంగాణలో. ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు, నేను కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తే గజ్వేల్దని. ఆయనకు అర్థమైపోయిన విషయం. ఈ డైలాగ్ ఎందుకు ఎత్తుకున్నా అంటే నేను మీడియా మిత్రులను కూడా కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి దీన్ని హైలైట్ చేయాలి. మీడియా మిత్రులను కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఆయనకి ఎందుకంటే భయం పట్టుకున్న హుజురాబాద్ లో ఆయన ఓడిపోబోతున్నాడు. హుజురాబాద్ లో నెక్స్ట్ ఈటెల రాజేందర్ ఓడిపోబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఆయన ఓట్లేసిన జనం ఈయనకి ఎందుకు ఓట్లేసినామని చెప్పి బాధపడుతున్నారు. शहर हैदराबाद में कई मकामात पर कल शब हुई बारिश के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नांदल नगर के मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कई मकामात का दौरा किया. उन्होंने बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया और टोली चौकी निज़ाम कॉलोनी के इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के इंतज़ामात करवाए. मुल्क में मंकी पॉक्स के 4 मामलात के सामने आने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है. मरकज़ी हुकूमत ने एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन की तिब्बी जांच के काम जारी किए, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स की अलामात वाले बैरूनी ममालिक से वापस बाज़ अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें अलग थलग रखा गया है. उनके नमूने जांच के लिए हासिल कर लिए गए हैं. कारगिल विजय दिवस के सिलसिले में कौमी स्मारक के करीब कारगिल शहीदों को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया. इस मौके पर फ़ौज के सरकर्दा अहदेदारों ने भी कारगिल के शोहदा को खिराज पेश किया और मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियों को याद किया. रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिला कलेक्टरों को चौकस रहने की हिदायत जारी की है. सोमेश कुमार ने आज एक टेली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हुकाम को किसी भी सूरत में जानी नुकसान से बचने के लिए इक़दामात करने और तमाम महकमे के अफसरान को राहती इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कहा. चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि विकाराबाद जिले में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की आबी सतह में इजाफा होने का इम्कान है. उन्होंने GHMC वाटर बोर्ड के हुकाम समेत हैदराबाद और रंगारेड्डी जिला कलेक्टर्स को तालमेल से काम करने के लिए कहा है. चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत में बिला रुकावट बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है.
रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद कोपला ईश्वर ने कहा है कि तलबा को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। के ईश्वर ने आज शेखपेट के SC गुरुकुल स्कूल का अचानक मुआयना किया और तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया। गोलकुंडा के करीब वाक़े SC गुरुकुल बॉयज़ स्कूल और जूनियर कॉलेज का मुआयना करते हुए उन्होंने असातिज़ा को स्कूल और इर्द गिर्द साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की, जबकि तलबा के साथ वालिदैन जैसा सलूक करने और तलबा को बेहतर शहरी बनाने के लिए कहा। उन्होंने तलबा को अच्छी ग़िज़ा फराहम करने के लिए भी हिदायतें जारी की है। के ईश्वर ने डाइनिंग हॉल, वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम का भी मुआयना किया और असातिज़ा की जानिब से तलबा को फराहम की जा रही तवज्जो व सहूलियात से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने ऑस्ट्रेलिया की लेजर विजन कंपनी के एक वफ्द के हमरा मनेरो नदी के इलाके का आज दौरा किया। क़ब्ल अज़ीं ऑस्ट्रेलियन कंपनी और इंडिया FPA कंपनी के नुमाइंदों ने मनेरो नदी के करीब पानी के चश्मे, लेजर शो और हम्पी थिएटर के तामीर से मुताल्लिक़ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। गंगुला कमलाकर ने बताया कि मनेरो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 410 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं और इसके तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। ताहम शदीद बारिश और सैलाब के सबब तामीरी कामों में रुकावट आ रही है। वज़ीर सिविल सप्लाईज के मुताबिक महकमा सियाहत की जानिब से दरिया के अतराफ व अकनाफ के इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि DPR 6 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और लेजर शो, वाटर फाउंटेन के कामों के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED कार्रवाई के जरिए साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP मुल्क को अपोजिशन पार्टियों के बगैर बनाना चाहती है। कांग्रेस रहनुमा ने बंद किए गए नेशनल हेराल्ड मामले को दोबारा खोलने और साजिश के तौर पर सोनिया गांधी व राहुल गांधी को नोटिस देने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि BJP एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसी पार्टी है और पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस को जिसे चाहे उसे बेच रही है और मोदी दौरे हुकूमत में अवाम शदीद परेशान है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किया गया एहतजाज सिर्फ सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए है और कांग्रेस लीडरान कारकुनान घर घर जाकर अवाम को BJP की साजिशों से वाकिफ करवाएंगे। ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయనే భయంతో ఈ రోజు ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసేటువంటి సోనియా గాంధీ గారి పైన, రాహుల్ గాంధీ గారి పైన ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చి అక్రమంగా ఈ రోజు ఈడీ కార్యాలయానికి పిలిపించి గంటల తరబడి, రోజుల తరబడి ప్రశ్నిస్తా ఉంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులుగా, తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులుగా ఈరోజు మనం అంతా ప్రజల పక్షాన నిలబడటం కోసం నిరసన దీక్ష చేస్తా ఉన్నాం. ఇదేదో సోనియా గాంధీ గారి కోసమో రాహుల్ గాంధీ గారి కోసమో మాత్రమే మనం చేయట్లేదు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజానీకం కోసం, ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టడం కోసం మనం ఈరోజు నిరసన దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. నేను అడుగుతా ఉన్నాను భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల్ని, దానికి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి కార్యకర్తలను అడుగుతా ఉన్నాను, ఏమయ్యా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. నేషనల్ హెరాల్డ్ పేపర్కి సంబంధించి నేను కూర్చున్నప్పుడు మా మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు, షబ్బీర్ అలీ గారు, పొన్నా లక్ష్మి గారు పెద్దలు, ఆల్రెడీ ఈ కేసు సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒకసారి నోటీస్ ఇచ్చి ఇందులో ఏమీ లేదని మూసేసింది. ఎన్నికల కమిషనే కాదు, చివరికి ఈడీ డైరెక్టర్ కూడా నోటీస్ ఇచ్చి గతంలో దీని మీద పరిశీలన చేసి దీంట్లో ఏమీ లేదని మూసేసిన కేసుకు సంబంధించి शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रानगुट्टा में फ्लाईओवर के तामीरी कामों के सबब रास्ता बंद किया जा चुका है, जिसके सबब चौराहे पर घंटों ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है और आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वाज़ेह है कि चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर के तामीरी काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 माह से जायद अरसे से तामीरी काम के पेश नजर रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवार गलत रूट पर गाड़ियां चलाकर मजीद ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक को इस मसले को हल करने के लिए बर वक्त इक़दाम करने और ट्रैफिक अहलकारों को मसरूफ तरीन औकात में चंद्रानगुट्टा पर तैनात करने की जरूरत है ताकि अवाम को राहत मिल सके। मुसलसल बारिश के सबब सड़कों की खस्ता हाली ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाती है। अवाम ने TRS हुकूमत से फ्लाईओवर की तामीर को जल्द अज जल्द
जल्द यकीनी बनाने के अहकामात जारी करने और उन्हें राहत पहुंचाने की दरख्वास्त की है। NSUI लीडरान ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आज एहतजाज दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक NSUI रियासती सदर वेंकट बालामुर की ज़ेरे क़यादत NSUI लीडरान और कारकुनान ने तहकीक़ात के नाम पर कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को ईडी के जरिए पूछताछ के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के सामने आज एहतजाज दर्ज करवाया और दफ्तर में दाखिल होने की भी कोशिश की। ताहम एबिट्स पुलिस ने NSUI लीडरान को रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंचलगुड़ा में वाक़े तारीखी चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की इमारत को तुलबा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके सबब इमारत में तुलबा की तालीम की बरकरारी को लेकर न सिर्फ तुलबा बल्कि औलियाए तुलबा भी तशवीश में मुब्तला हैं। आपको बता दें कि कॉलेज का क़याम सन 1969 में अमल में आया था और चंचलगुड़ा में वाक़े इस तारीखी सरकारी इमारत में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी मौजूद है, जिसमें सैकड़ों तुलबा ज़ेरे तालीम है। महकमा बल्दिया ने बारिश के सबब इमारत को बोसीदा करार दिया है और इमारत के बाबू दाखिला पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। MBD तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कॉलेज की इमारत में तुलबा के दाखिलों को रोकने पर तशवीश जताई है और कहा है कि तुलबा के सरपरस्त फिक्रमंद है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत और महकमा बल्दिया चाहे तो कम अरसे में इमारत की दागदोसी का काम मुकम्मल किया जा सकता है और दोबारा तालीम को बहाल किया जा सकता है। ताहम हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। अमजदुल्ला खान ने हुकूमत से खदीम इमारत की हिफाजत करने और इमारत की दागदोजी की पुरजोर अपील की है। देखिए साहब, आज से 2 दिन पहले गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पर महकमे बल्दिया की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक नोटिस चस्पा की गई कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े की जो बिल्डिंग है वो डेलाबरेटेड कंडीशन में है। उस बिल्डिंग में अगर बच्चे तालीम पढ़ेंगे, ये कॉलेज के बच्चे अगर जाएंगे तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती बोल के। तो बड़े अफसोस की बात है कि तकरीबन 500 से स्टूडेंट हैं इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डिफरेंट कोर्सेज के 500 से 600 बच्चों को 2 दिन से कॉलेज नहीं हो रहा है, बाहर बैठे हुए हैं वो लोग। बिल्डिंग जो है आज 1 दिन 2 दिन में डेलाबरेटेड नहीं हुई है। ये तकरीबन 1947 से लेकर पहले की तामीर याफ्ता बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो है कि कई लोग बशमूल गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब से लेकर जस्टिस सरदार अली खान साहब और आपके आज कई लोग हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में, जो यहाँ से तालीम याफ्ता होकर बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये बिल्डिंग ये है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चंचलगुड़े की बिल्डिंग थी। है बाद में उसमें कॉलेज आया तो ये बिल्डिंग ट्रांसफ़र करके गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग कहने लगे और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत ये बिल्डिंग को दे दी गई है। 2 दिन से जो है बिल्डिंग को लॉक कर दिया गया है, लेकिन हमारे कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो कमिश्नर और सेक्रेटरी है जनाब उमर जलील साहब को फुर्सत नहीं मिली कि आके वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करे यहाँ पर और बच्चों के लिए अल्टरनेट कहीं जगह तब्दील करे। और एक बड़े अफसोस की बात है कि ये हलका जो है पहले याकुतपुरे में आता था और हैदराबाद पार्लियामेंट में आता था। तो याकुतपुरा जब से बना ये हलका, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA रहे, कभी ख्वाजा अबू सईद साहब रहे, कभी इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब रहे, कभी 25 साल तक जो है मुमताज़ अहमद खान साहब MLA रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पहली मरतबा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने उस तारीख से लेके वो आखिरी जब तक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे इसी हल्के के MP रहे। जिले विखाराबाद के परगी में रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब जाने की इतलात मिली है और मूसलाधार बारिश ने नदी और नालों को लबरेज कर दिया है। परगी से विखाराबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो जाने से आमदोरफ्त मुतासिर रही। ताहम पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक बहाली के इक़दामात किए। MLA के महेश रेड्डी ने लखनापुर प्रोजेक्ट का मुआयना किया है और हुकाम समेत गाँव वालों को चौकसी इख्तियार करने के लिए कहा है। मुत्तहिदा तुलबा यूनियनों के लीडरान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का PhD नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। तुलबा यूनियनों की जानिब से आज OU बंद का ऐलान किया गया था और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक धरना भी मुनज़्ज़म किया गया था। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तुलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई की इस एहतजाजी धरने में मजम्मत की गई है।
तुलबा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से OU स्टाफ को इंतजामिया की इमारत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि तुलबा VC से मिलकर PhD नोटिफिकेशन की इजराई की दरख्वास्त करने जाते हैं तो उन्हें VC से भी मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। VC प्रोफेसर रविंदर ने पुराने तरीके से ही नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। యూనివర్సిటీలో పాత పద్ధతిలోనే PhD నోటిఫికేషన్ ఇస్తూ ప్రైవేట్ కాలేజీలకు కాకుండా ఓన్లీ కేవలం గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో రీసెర్చ్కి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పేసి VC గారిని కలవడానికి పోతే VC గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ గుండాలతోని కొంతమంది సిబ్బందితోని మా పైన దాడి చేపించడం జరిగింది. ఆ దాడికి నిరసనగా ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బంద్ను పిలుపునిచ్చినాం. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బంద్లో మమ్మల్ని అందరూ సహకరించి బంద్ను విజయవంతం చేసినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, పోలీస్ మిత్రులకు కూడా. ఈ సందర్భంగా మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు తప్పకుండా పాత విధానంలోనే PhD నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలి. గవర్నమెంట్ కాలేజీలోనే లెక్చరర్స్కి ప్రొఫెసర్స్కి మాత్రమే రీసెర్చ్కి అవకాశం కల్పించాలి, అక్కడ ప్రవేశాలు కల్పించేటట్టు. మీరు ప్రైవేట్ కాలేజీలలో ఎట్టి పరిస్థితులను రీసెర్చ్కి అవకాశం కల్పించని చెప్పేసి మా ప్రధానమైన డిమాండ్. అలాగే పాత విధానంలో ఏవైతే నెట్టు సెట్టు అలాగే OU ఎంట్రన్స్కి 20, 25, 15 మార్క్స్, అలాగే 10 మార్క్స్ PG పర్సెంటేజ్, 5 మార్క్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్స్, ఇంకో 10 మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూకు ఏ విధంగా అయితే పాత విధానంలో 50 మార్కులకు పూర్తి మార్కులకు 50 మార్కులకు ఏ విధంగా అయితే గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారో అవే గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ గైడ్లైన్స్ కాకుండా కొత్త విధి విధానాలు తీసుకొచ్చి మీరు కొత్త విధి విధానాల ప్రకారము గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి నోటిఫికేషన్ ఇస్తా అంటే మేము చూస్తూ ఊరుకోం. ఇంకా అవసరమైతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం. తప్పకుండా పాత పద్ధతిలోనే PhD నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు ఉద్యమిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్కి పాత విధానంలోనే PhD నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. शहर हैदराबाद में मुनाकिद होने वाली फैशन एग्जीबिशन द ब्राइडल स्टोरी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका जल्द ही आगाज हो जाएगा। इस नुमाइश में दुल्हन के लिबास, जेवरात, शादी के मलबूसात, प्रीमियम डिजाइनर वेयर देखने को मिलेंगे। 30 और 31 जुलाई को शहर के हाईटेक सिटी HICC नोवेटल में ये नुमाइश मुनाकिद की जा रही है। नुमाइश जीतू हैदराबाद लेडीज विंग के जरिए प्रमोट की गई है और मुल्क भर के टॉप डिजाइनर्स के मलबूसात का कलेक्शन और जेवरात एक ही छत तले पेश किए जाएंगे। समाजी सरगर्मियों को फरोग देने और फंड्स के हुसूल के लिए इस नुमाइश को मुनाकिद किया जा रहा है। जीतू लेडीज विंग डायरेक्टर सुमन बचावत और चेयरपर्सन सुनीता बोहरा व दीगर ने बताया है कि जरूरतमंदों की मदद करने, बच्चों को तालीम फराहम करने, सेहत को फरोग देने व दीगर मकासद को मद्देनजर रखते हुए नुमाइश और दीगर सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। నేను మీ ద బ్రైడల్ స్టోరీలో ఉన్నాను. ఏ లగ్జరీ ఎగ్జిబిషన్. ఇట్స్ ఆన్ 30th and 31st of July at HICC నోవెటెల్. మీరు నన్ను చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫుల్ బ్రైడల్ లాగా. ద హెవీ జ్యువెలరీ అండ్ ద డ్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద బ్రైడల్ స్టోరీ. సో అందరూ తప్పకుండా 30th and 31st ద బ్రైడల్ స్టోరీకి వస్తే, ఇప్పుడు పెళ్ళి సెట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అక్కడికి వెళ్ళిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పెళ్ళి సెట్ అయితే చాలు. ఏ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఆల్ ద బ్రైడ్స్ అనమాట. మీరు జస్ట్ అక్కడికి వస్తే మీకు వెడ్డింగ్ ప్లానింగే కానీ, ఫోటోగ్రఫీ, జ్యువెలరీ, బ్రైడల్ వేర్, ఫ్రూట్ వేర్, మీకు మేకప్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఒక వన్ స్టాప్లో మీకు అయిపోతుంది. This time I'm coming up with The Bridal Story, a luxury exhibition at Novotel, 30th and 31st July. And the best part of this exhibition that this is organized by Jeetu National and Jeetu National Ladies Hyderabad Wing. And here you can find everything which a wedding is required. You know, the photography, the LED screens, the bed sheets, jewelry, accessories, saris, variety of saris, varieties of handloom saris, lot of everything is available at this bridal story. And even not only for bride, here you can find so many things for the groom also, because few of the brands like MyFit is coming for bridal story. रियासत गुजरात में मिलावटी शराब पीने के वाक़े में हलाकतों की तादाद बढ़कर 28 हो चुकी है। गुजरात DGP आशीष भाटिया ने बताया कि जिले बोटाड के रोजवीट गांव में मिलावटशुदा शराब पीने से 28 हलाकतें हो चुकी हैं और 50 अफराद बीमार हैं। हुकाम के मुताबिक फौत होने वालों में ज्यादातर यौमिया मजदूर शामिल हैं। धंडुका, भावनगर और बोटाड अजला में मिलावटी शराब पीने से मुतासिर होने वालों की बड़ी तादाद अस्पतालों में भर्ती हो रही है। पुलिस ने छानबीन का आगाज किया है, जबकि गुजरात हुकूमत की जानिब से इस वाक़े की जाँच के लिए SIT
कमेटी तश्कील दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात में शराब पर पाबंदी आयद है, ताहम पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तरीके से शराब की खरीद और फरोख्त की जाती है। FSL रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शराब में 98% से ज्यादा मिकदार में मिथाइल पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कांग्रेस साबिक सदर राहुल गांधी समेत दीगर MPs को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी से ईडी के पूछगछ के बाद मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी की जेर क़यादत पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे से विजय चौक तक एक रैली निकाली गई और मरकजी हुकूमत से तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल न करने का मुतालबा किया गया। विजय चौक पर एहतजाज कर रहे राहुल गांधी व दीगर मेंबरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस MPs ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाने की बात कही है और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुख्तलिफ प्राइवेट टूर ऑपरेटरों की जानिब से दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वो सऊदी अरब जाने वाले आज़मीन को हज और उम्रा गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया जाए। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस AS ओका और जस्टिस T रवि कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने कहा, हमने इस्तिस्ना और इम्तियाजी सलूक दोनों की बुनियाद पर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा मुल्क इन बहादुर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज बहादुर जवानों को याद करते हुए मुल्क की हर बाशिंदे की आंख में आंसू है, लेकिन सर फख्र से ऊंचा हो रहा है। मुल्क आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी को याद करते हुए फ़ौज के जज्बे को सलाम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस भारत माँ की आन बान और शान की अलामत है। इस मौके पर मादरे वतन की हिफाजत में बहादुरी के कारनामे अंजाम देने वाले मुल्क के तमाम बहादुर बेटों को मेरा आजिज़ाना सलाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को बड़ा झटका लगा है। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल के मजबूत दावेदार नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए हैं। वो फिट नहीं हैं और इन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान चोट लग गई थी। IOA के सेक्रेटरी जनरल राजू मेहता ने नीरज चोपड़ा के कॉमनवेल्थ गेम से बाहर होने की तस्दीक की है। पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद के आला लीडरान ने पंजाब सूबे के वज़ीर आला के दोबारा इलेक्शन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ अदम एतमाद ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। लीडरान ने अदालत से गुजारिश की है कि वो एक तरफा फैसला लेने के लिए मखसूस PMLN मुखालिफ बेंच तश्कील करने से बचे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम ने जो मैंडेट दिया है और इसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस्म फरोशी के इंटरनेशनल कनेक्शन का इंकशाफ हुआ है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल होटल हयात में छापामारी के बाद इंटरनेशनल कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने जिस्म फरोशी में मलूस एक खातून दलाल को गिरफ्तार किया है जो बुनियादी तौर पर नेपाल की रहने वाली है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,830 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 36 हलाकतें हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद बढ़कर 4,39,20,451 हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 1,47,512 हो गई है। कोरोना वायरस से फौत होने वालों की तादाद 5,26,110 तक पहुंच गई है। वज़ारत सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.34% बताया है और कौमी सतह पर सेहत याब होने वालों की शरह 98.4 रिकॉर्ड करने की इत्तला दी है। बीमारी से सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 4,32,40,829 हो गई है और अमवात की शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक कौमी सतह पर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 202.5 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क भर में कोरोना से होने वाली 36 अमवात में से 7 अमवात केरला, 7 अमवात मगरबी बंगाल, 6
6 अमवात महाराष्ट्र, 3 गुजरात, 2 दिल्ली और पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में एक-एक अमवात हुई हैं।